بہت ساری آپ کو قیمتی گھڑیاں سر نظر آ رہی ہیں, کرنسی نظر آ رہی ہے سر, اور یہ ان کا رضوی صاحب کا جو بیٹے کا گھر ہے سر, یہ وہ ہے. تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم قرار دے دیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری. گزشتہ روز تنظیم پر پابندی لگائی گئی تھی. ٹی ایل پی کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا گیا, اثاثے اور اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے. رہنماؤں پر سفری پابندیاں لگ گئی. ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کل عدم قرار دیا گیا. حکومت کا سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹی ایل پی پر پابندی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت نہیں لگائی گئی. آرٹیکل 17 کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ شواہد کا جائزہ لے کر پابندی کا فیصلہ کرتی ہے. فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرتا ہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے تحریک لبیک پر پابندی کے لیے کافی مواد موجود تھا. اس تنظیم نے راستے میں جگہ جگہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو تنظیم ایسی کارروائی میں ملوث ہو تو اسے کلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 30 دن کے اندر متعلقہ جماعت اپیل کر سکتی ہے. نظر ثانی کی اپیل کے بعد پابندی برقرار رہے تو پھر عدالت جا سکتے ہیں. پنجاب حکومت کا صوبے میں ڈرون پولیسنگ اور ریگولیشن کے لیے نئے قوانین متعارف کروانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن امان سے متعلق اجلاس میں صوبے میں لائسنس یافتہ اسلحے کے ایکسپائر جانچ اور اسکروٹنی کا بھی فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی اسلحہ 15 دن کے اندر اندر واپس لیا جائے گا. پنجاب میں وفاقی اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کی بھی جانچ کی جائے گی. صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی. ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا, ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے, اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے, وہ کتنا خطرناک انسان ہے. ویپنس کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے, بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس ہم بات کرتے ہیں, آپ سے درخواست ہے اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. 15 دن کے اندر غیر قانونی اسلحہ جمع کرا دو, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. پنجاب پولیس اور سی سی ٹی نے خبردار کر دیا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ خود سے غیر قانونی اسلحہ جمع کرا دیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جن کا کرائم ریکارڈ نہیں ہے وہ لائسنس یافتہ اسلحہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی. ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد کسی کو معافی نہیں دی جائے گی, پھر سخت کارروائی ہوگی. دشمنیوں کے نام پر بھی اسلحہ لہرانے کی اجازت نہیں ملے گی. جن کی دشمنیاں ہیں وہ آپس میں صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں. CFAC has been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CFAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں امن اور ترقی کے لیے معاشی اور تجارتی روابط بڑھانے پر زور. خطے کی دیگر ممالک کو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ. ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب میں کہا سی پیک خطے میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے. گوادر کو چین کے صوبے شینکیانگ سے ملانے سے ترقی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھل رہی ہیں. یہ تعاون نہ صرف تمام فریقین کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ امن اور ترقی کی مشترکہ کوششوں کو بھی تقویت دے گا. علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس دور میں روابط صرف سڑک, ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں. ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بھی اہم ہے. اس میدان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ پاکستان چوتھے صنعتی انقلاب سے بھرپور فائدہ اٹھائے. حکومت
का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल न खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम है। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज पर इत्तेफाक राय हुआ और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसको मुआहिदा कहती है या नहीं कहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीकाकार के कयाम की हिमायत करता है। मैकेनिज्म पर कल तुर्की में बातचीत होगी। दरियाए कुनर से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। पाक अफगान जंगबंदी के बाद चमन में बाब दोस्ती और खैबर में तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए आज भी बंद। बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने के बायस फलों के 400 ट्रक स्पिन बोलते के खड़े हैं। ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर और अंगूर खराब हो चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों में मुतासरा ट्रेड रूट्स और मुतासरा मकामात से मलबा अब तक नहीं हटाया जा सका। बाब दोस्ती खुलने पर ट्रांजिट कंटेनर्स के लिए मरहलावार क्रॉसिंग फार्मूला तजवीज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी ने मुलाकात की। मुश्तरका फार्म और तफहीम को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के लिए कतर का अज़्म दोहराया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में धमाके में SP ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक SP ऑपरेशन हंगू असद जुबैर चेक पोस्ट धमाके की जगह का मुआयना करने जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के पास दूसरा धमाका हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू बम धमाके पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब। सदर हाफिज जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू में भारतीय स्पॉन्सर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कहा SP और दोनों पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज का टास्क में भारतीय स्पॉन्सर फितना अल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा है रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियों के असर का 6 माह में पता चलेगा। रूसी सदर पुतिन जल्द ही माशी दर्द महसूस करेंगे। रद्द अमल में रूस के सदर पुतिन ने कहा कि पाबंदियों के असर होंगे लेकिन ये रूसी मईशत को ज्यादा मुतासर नहीं कर सकेंगे। इकदाम रूस पर दबाव डालने की कोशिश है। इज्जतदार मुल्क और लोग दबाव में कभी भी कोई फैसला नहीं करते। पुतिन ने कहा कि अमरीकी सदर को सोचना चाहिए कि फौरी तौर पर तेल की आलमी पैदावार बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फजाई आलूगी में इजाफा। सुबह के औकात में फैसलाबाद 471 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 335 रहा। गुजरावाला में 262, सियालकोट में 219 और मुल्तान में 203 AQI रहा। स्मॉग बढ़ने से सांस और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज्यादा मुतासर हो सकते हैं।
पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है, जरा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डिरेल हो जाएगा, ये अलायंस पाकिस्तान के लिए है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को सियासी अमूर में शामिल होना पड़ेगा, वजीर आज़म से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे, अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। अगर सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मिलने तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप चाहते हैं कि सूबे में अमन हो और ऑपरेशन भी न हो, एक जिरगा बनाकर विफाक से बात करनी चाहिए। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नायब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ नायब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने 2020 में थाना चौन में मुकदमा दर्ज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई। कहा गया कि ना अहल ना तजुर्बेकार और बच्चे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। उन्हें अपने आप को बतौर वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की फिक्र नहीं। चारशदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराह दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। न सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि पीटीआई को भी साथ लेकर जाएंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत ने पीटीआई को बड़ी गाला मुंतकिल करने की कोई डील नहीं दी। पीटीआई दिन के उजाले में लिख के दे कि वो बड़ी गाला या नथिया गली मुंतकिल होना चाहते हैं तो गौर करेंगे। रियासत में उनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील की खातिर है। प्रोग्राम जरगा देखिए हफ्ते की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज के केस में आज भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत का अलीमा खान का बैंक अकाउंट फ्रीज करने, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामीन की भी जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कालाधन तंजीम के 2 मुल्ज़िमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले तफ्तीशी अफसर ने कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान से गैर कानूनी असला और तमाम मवाद बरामद हुआ। वो कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ सीटीडी थाने में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस आजम खान का मख्फी का व्हाट्सएप डेटा चेक करने का हुक्म। डीएसपी लीगल ने अदालत को बताया लापता डिप्टी डायरेक्टर का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA एक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस की तहकीकात कर रहे थे। इस केस की तहकीकात करने वाले बाकी लोग भी गायब हैं। डिप्टी डायरेक्टर की दरखास्त गुजार एहलिया भी अब तक लापता। डीएसपी लीगल ने बताया दरखास्त गुजार का घर बंद है, बच्चे भी वालिदा के साथ हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल का फोन मुसलसल बंद जा रहा है। उन्हें फोन पर दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। मिस्र ताउन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में गुफ्तगू। मिस्र के वजीर दिफा दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेही से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेख अज़हर शेख अहमद लतीफ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे।
اسلام آباد میں شاہین چوک انڈرپاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام آباد میں منصوبے برق رفتاری سے مکمل کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ چیئرمین CDA اور ان کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ دسمبر میں ڈی چوک فلائی اوور کا افتتاح کریں. 11th ایونیو پر کام شروع کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں مبینہ خودکشی کرنے والے SP عدیل اکبر کی گجرانوالہ میں تدفین. نماز جنازہ میں IG اسلام آباد CPO گجرانوالہ اور دیگر افراد کی شرکت. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا کہ SP عدیل اکبر کا ٹیلی فون آپریٹر اور گن مین حراست میں ہے. ان کا آج بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ تھا. گزشتہ روز عدیل اکبر کے بھائی پورا دن ان کے ساتھ تھے. وہ جہاں جہاں گئے جو فون کالز کی سارا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے. ضلع ٹانس میں نامعلوم افراد نے لڑکیوں کا پرائمری اسکول بم سے تباہ کر دیا. تونسا میں پولیس نے سرکاری اسکول پر دہشت گردوں کے قبضے کی کوشش ناکام بنا دی. دہشت گردوں نے تونسا اسکول کے اطراف بارودی سرنگیں بچھائی تھیں. اسکول میں تدریسی عمل بحال کر دیا گیا. بلوچستان اسمبلی کے رکن شاہدہ روف نے کہا کہ بلوچستان میں ایک ہفتے میں 27 مزدوروں کا اغوا کیا گیا. آج 18 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا. حکومت اغوا کیا گئے مزدوروں کو بازیافت کروانے کے لیے اقدامات کرے. امن و امان کے ساتھ ساتھ ہر محکمے کے حوالے سے بریفنگ رکھی جائے. کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے محکمہ اطلاعات کے فلمی منصوبے صوبے کا مثبت تشخص نمایاں کرنے کے ساتھ نوجوان فلم سازوں اداکاروں کو تخلیقی صلاحیتیں سامنے لانے کا موقع فراہم کریں گے. محکمہ اطلاعات کی کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت فنون لطیفہ فلم اور میڈیا کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہی ہے تاکہ صوبے کا ثقافتی ورثہ عالمی سطح پر اجاگر کیا جا سکے. آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس کل ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی صدارت صدر آصف علی زرداری کریں گے. بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور بھی شریک ہوں گی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی. مظفر آباد میں یوم تاسیس پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا فوج پاکستان ہمارے جان و مال کے محافظ ہیں. آپریشن بنیانی محسوس کی بدولت پاکستان نے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا. یوم تاسیس پر آزاد کشمیر کی دیگر اضلاع میں بھی تقریبات ہوئی. یوم تاسیس کے موقع پر آزاد کشمیر میں عام تعطیل رہی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو کے خاتمے کے عزم کا دن. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کا انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والے ورکرز کو خراج تحسین. ایک بیان میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی والدین سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل. کہا اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں اور معذوری سے بچائیں. وزیر صحت سے نظرہ پیش ہو نے کہا کہ پولیو کیسز میں کمی آ چکی. چاہتے ہیں 2026 میں پولیو کا خاتمہ ہو. پاکستان میں رواں برس پولیو کے 30 کیس سامنے آ چکے ہیں. مقبوضہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے 2 ہفتے بعد بھی اسرائیلی رکاوٹوں کے باعث بھوک اور پیاس برقرار ہے. عالمی ادارہ صحت سمیت 41 تنظیموں کا کہنا ہے اسرائیل دانستہ طور پر امداد کی ترسیل روک رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق 11,500 حاملہ خواتین سمیت غزہ کی 1/4 آبادی بھوک سے متاثر ہے. اقوام متحدہ نے اسرائیل سے مزید امدادی ٹرکوں کو جانے کی اجازت دینے اور گزرگاہوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. نصر اسپتال میں فورینسک ٹیموں کے مطابق واپس آنے والی فلسطینی لاشوں پر تشدد کے نشان ہیں. محدود سہولیات کے باعث شناخت اور پوسٹ مارٹم ممکن نہیں رہا.
इसराइल ने गाजा में 70,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया इस पर खामोश रही। गाजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों ने इसराइली मजालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। बयाना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू अल जजीरा के सहाफी वाइल की बीवी समेत 5 अहल खाना इसराइली हमले में मारे गए। मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफी ने कहा कि आलमी खामोशी के बायस अब सहाफी का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जा सकता है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका के कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। वेटिकन में मुनाकिदा दुआया तकरीब में भी शिरकत की। 500 बरस में ये पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर विराजमान बादशाह ने ऐसी दुआया तकरीब में शिरकत की हो। बादशाह और मलिका खुसूसी दरवाजे से बसिलिका में दाखिल हुए। आवाम के लिए दरवाजा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। उर्दू की मुमताज नावल नगार और अफसाना नगार असमत चौथाई को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। ढीठ लिहाज चोई मोई और एक कतरा खून असमत चौथाई की शाहकार तहरीरें हैं। बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा असमत चौथाई ने उन मौज़ूआत पर कलम उठाया जिनको छेड़ते हुए बड़े अदीब भी झिझकते थे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 4.2 ओवर्स के बाद ही बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफर किसी जीत के बगैर खत्म। ग्रीन शर्ट्स को 7 में से 4 मैचों में शिकस्त हुई, जबकि 3 मैच बारिश की नजर हो गए। वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका की टीमें इंदौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में पिंक टीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर से पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा खवातीन की मौत हुई है। इब्तदाई तशखीस के बाद इस बीमारी से बचा जा सकता है। मैच के लिए मेहमान टीम और मैच ऑफिसर्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। पहला T20 मैच मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। जराये के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स को NOC जारी हो चुके हैं उन्हें BBL खेलने की इजाजत होगी। कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुतला कर दिया गया। एशिया कप में शिकस्त के बाद PCB ने खिलाड़ियों के लीग खेलने की NOC रोकने के लिए लेटर जारी किया था, जिसके बाद PCB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में मसले के हल के लिए राबता हुआ था। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के कप्तान शाह मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। शाह मसूद पाकिस्तान की जानिब से 44 टेस्ट खेल चुके हैं। 14 टेस्ट मैचेस में क़यादत भी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के लिए चंद रोज पहले इश्तिहार भी दिया था। भारतीय शहर विशाखापट्टनम के 5 स्टार होटल में चूहे की एंट्री। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स के खाने के दौरान चूहा डाइनिंग हॉल में घुस गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स अचानक गुफ्तार से घबरा गईं। चूहे ने मुलाजिमिन की दौड़ें लगवा दी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चूहे से बचने के लिए कुर्सियों पर चढ़ गईं। टीम रेजास इन पोलो और टीम HSJ ने पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में टीम सांबा और टीम लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट का दिलचस्प फाइनल रेजान इन पोलो और टीम HSJ के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। गवादर के करीब समुद्र में 4 बर्ड्स वेल्स देखी गई हैं। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहिगीरों ने वेल्स की वीडियो बनाई। पाकिस्तान में इन वेल्स की आखिरी बार मौजूदगी का रिकॉर्ड नवंबर 2023 में जिवाने से मिला था। ये वेल्स आमतौर पर गर्म समुद्रों में पाई जाती हैं और ज्यादातर झुंड की सूरत में तैरने वाली मछलियां इनकी खुराक बनती हैं।
मुत्तहदा अरब अमारात में 10 करोड़ दिरहम की लॉटरी खुश नसीब फाते ने 7 अरब 65 करोड़ 51,64,000 पाकिस्तानी रुपए की लॉटरी जीत ली। इंतजामिया ने लॉटरी जीतने वाले शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की। 21 साल के अंदर बेशुमार कॉन्सर्ट परफॉर्मेंसेज हो चुकी होंगी, मिनिमम कितने लोगों के सामने किया है और मैक्सिमम कितना क्राउड आपने हैंडल किया हुआ है? अवेश मिनिमम 100 भी होंगे, हाँ 50 भी होंगे, कहीं जो प्राइवेट होते हैं इवेंट्स, और 50,000 के सामने भी किया हुआ है। ये कहाँ था फरहान भाई? 50,000 कैलकाटा में। इंडिया में बड़ा कैलकाटा में किस्सा है वहाँ का। उसका किस्सा भी है एक्चुअली, ये वही शो है। और मारूफ गुलकार फरहान सईद बने हंसा मना है में मेहमान। भारत ने दिल दिल पाकिस्तान गाया तो क्या क्राउड मारने आया, जान कैसे बचाई, ये सब और बहुत कुछ देखिए हंसा मना है में ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे जियो न्यूज पर।